Now let's see the next passage. So this is the next passage. Okay, so this is a very good passage, and on this passage there are two questions is being asked, right? So first of all we will read the question, right? ये वाला passage ज़्यादातर स्टूडेंट्स को टफ लगा था, right? So many student find it tough in the exam, right? So let's read. The history of renewable energy, right? Renewable energy की हिस्ट्री के बारे में बोल रहा है. Suggest there is a steep learning curve. Meaning, इसका मीनिंग बता रहा है that as more is produced, cost fall rapidly. Because क्यों cost क्यों fall कर रही है? Because of economies of scale and learning by doing, right? तो यहां तक पहले हमें समझना है, right? तो क्या बोला है हिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, क्या बता रही है कि देयर इज ए स्टीप लर्निंग कर्व. स्टीप लर्निंग कर्व मतलब क्या है कि द मोर इज प्रोड्यूस, तो कॉस्ट फॉल हो रही है ना, जो कॉस्ट है वो कम हो जा रही है, राइट? क्यों हो रही है कॉस्ट कम? एक तो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, मतलब अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं देन प्राइस कम पड़ता है, राइट? जो उसकी कॉस्ट जाएगी दैट विल बी लेस, राइट? सेकंड, लर्निंग बाय डूइंग, कि अगर हम कुछ चीज बना रहे हैं देन वी विल गेट एक्सपर्टीज इन दैट, राइट? ओके, सो उस वजह से भी कॉस्ट कम बढ़ेगी, राइट? नाउ द फर्म ग्रीन इनोवेशन इज पाथ डिपेंडेंट, राइट? तो ये बिल्कुल फाइनल ऑथर ने बोला है कि जो फर्म का ग्रीन इनोवेशन है वो क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, राइट? मतलब यहां पे मीनिंग दिया है द मोर ए फर्म डज द मोर इट इज लाइकली टू डू इन द फ्यूचर, राइट? पाथ डिपेंडेंट का मतलब यहां पे क्या दिया है ऑथर ने, द मोर ए फर्म डज, कोई कंपनी जितना करेगी, राइट, उतना ही वो फ्यूचर में ज्यादा करेगी, है ना? द मोर ए फर्म डज द मोर इट इज लाइकली टू डू इन द फ्यूचर. The strongest evidence, right? Now they are talking about evidence. Evidence means example. So they are giving one example. For this is the collapse in the price of solar energy. So solar energy की बात कर रहे हैं, right? कि उसका price collapse हो गया, right? Which became about 90% cheaper during the 2010, repeatedly beating forecast, right? यहाँ पे example खत्म हो गया. Now next, moving early and gradually, right? If we are moving early and gradually gives economies more time to adjust. तो economies को क्या फायदा होता है, that they get more time to adjust, allowing them to reap the benefit. Then they can take the benefit of path dependent green investment without much disruption, right? So moving early है ना and gradually से क्या फायदा हो रहा है, they get more time to adjust, right? And they can reap the benefit of path dependent green investment without much disruption. Okay, now next, a late more chaotic transition is costlier. अगर लेट कर रहे हो then there will be a chaotic transition होगा, right? स्मूथ नहीं होगा, right? जैसे यहाँ पे gradually लिखा है उसने, that will be chaotic and that will be costlier, right? तो हमने बहुत डिटेल में पैसेज को पढ़ लिया, right? So now let's read the क्वेश्चन को देखते हैं अभी, right? So this is the first question. Which one of the following statement best reflect the? So we have to tell the central idea of the passage. What is the central idea of the passage? Right. First, economies of scale is essential for transition to green growth. Right. This is correct. Right. Economy of scale होगा, then the cost will fall. Right. That is essential for transition to green growth. So this is correct. Right, but one thing is missing in this, that we have to move early, right? अगर late move करेंगे then economy of scale को फायदा नहीं होगा, right? So this is correct, right? So this is correct, but not the full argument, right? So normally we have to select options which capture the passage in totality, right? कि complete message जो है passage का वो आना चाहिए, right? Now second देखते हैं, अगर नहीं होगा तो यही मार्क करेंगे, right? Now second, modern technological progress is intensely linked to path dependent innovation, right? So this is correct, right? That जो modern technology है कि जो progress है it is linked to path dependent. उसने बोला ही है कि path dependent है, right? Technology की जो innovation है, but this is a general idea, right? So this is a general statement they are making, but they are not talking about, but the passage is about the green renewable energy, right? Or green investment, right? Now, so this is also correct, right? ये बोला है ऑथर ने, but this is also not complete, right?
नाउ थर्ड देखते हैं, कंट्रीज विद लार्ज इकोनॉमी आर इन ए बेटर पोजिशन टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी, राइट। सो पैसेज में कहीं पे लार्ज और स्मॉल इकोनॉमीज के बारे में बात नहीं करिए, राइट, दैट दे विल गेट ए बेनिफिट, राइट। विद लार्ज इकोनॉमी को क्या होगा, यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये क्या एज्यूम करेगा कि लार्ज इकोनॉमी है तो उनके पास दे विल हैव मोर मनी, सो दे आर इन ए बेटर पोजीशन, राइट। ऐसा नहीं है, मेन पॉइंट क्या बोला है उसने, ऑथर ने, कि वी नीड टू स्टार्ट अर्ली, राइट। सो ऐसा ऑथर ने बोला नहीं है ना लार्जर इकोनॉमीज के बारे में, ओके। नाउ लास्ट ऑप्शन देखते हैं, डी, टाइमिंग प्ले ए क्रूशियल रोल इन द केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, राइट। सो अगर आप पैसेज को देखो, सो द पैसेज इज होल अबाउट अर्ली एंड लेट, राइट, कि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूव कर रहे हैं या लेट मूव कर रहे हैं, सो दिस इज करेक्ट, है ना। एंड ये पूरा पैसेज का मेन पॉइंट भी है, सो this will be the answer, option D, right. Option A and B are also correct, right. So B is just a general statement, right. So the missing point here is the author is talking about the green innovation, right. And in the first option we are missing that we have to move early. The statement is correct, right, but this is not the central idea, okay. तो देखो एग्जाम में ऐसे ही होता है कि ऑप्शन सिमिलर है, बट वी हैव टू ऑलवेज सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, राइट। इसलिए आप देखोगे सारे क्वेश्चंस में बेस्ट लिखा रहता है कि वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो, बट हमें उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है वही चूज करना है, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पैसेज पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द अजम्पशंस, राइट। सो व्हाट इज द अजम्पशन? फर्स्ट, path dependent green investment will eventually, right, path dependent and green investment will eventually most likely benefit growth as well as public finance in a country like India, right. तो क्या ऑथर के दिमाग में ऐसा है, क्या ऑथर इस चीज पे बिलीव करता है? यस, क्योंकि ऑथर ने पाथ डिपेंडेंट बोला है, ठीक है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। इट विल मोस्ट लाइकली बेनिफिट ग्रोथ, क्योंकि चीप होगा एक तो, राइट, सो इट विल बेनिफिट द पब्लिक फाइनेंस, राइट। एंड जो ट्रांजिशन है दैट विल बी ग्रेजुअल, राइट। पैसेज में दिया हुआ ही है कि द इकोनॉमी विल गेट मोर टाइम टू एडजस्ट, है, राइट, एंड दे कैन रीप द बेनिफिट, सो दिस इज करेक्ट। यहाँ पे बेनिफिट आ रहे हैं, ग्रोथ आ रही है, पब्लिक फाइनेंस में ही फायदा हो रहा है बिकॉज चीप, सो दिस अजम्पशन इज करेक्ट। नाउ सेकंड, इफ अदर ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ सोलर एनर्जी, देयर विल मोस्ट लाइकली बी एन इजी ग्रीन ट्रांजिशन, राइट। तो सोलर का एग्जाम्पल दिया ही ऑथर ने, राइट। सो वो एग्जाम्पल दे रहा है ऑथर, एग्जाम्पल क्यों दिया है सोलर के बारे में, बिकॉज वो बोलना चाह रहा है कि ग्रीन जितने भी ट्रांजिशन है ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, राइट, दैट विल बी इजी अगर जो ऑथर बोल रहा है वैसा करते हैं, राइट, इसलिए उसने सोलर एनर्जी वाला एग्जाम्पल दिया है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि अगर सेम थिंग वी विल फॉलो इन द अदर ग्रीन टेक्नोलॉजी, राइट, देन देयर विल बी easy green transition, so this is also correct, so both assumptions are correct, so the answer will be option C, both first and second, okay. So I hope ये आपको समझ आ गया होगा, हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया, राइट।